So hello guys, welcome to my YouTube channel The Captain Versatile. So today I am going to tell you about, or make a review, simple blah blah blah, about this DOMS Fusion. I think its name is, wait, I just light up the torch, I can't. So this is DOMS Fusion eraser, no, DOMS Fusion pencil plus eraser plus sharpener. After three doings, after three doings I get this. I didn't find it that this sharpener have also eraser. They didn't mention it anywhere. They just written as eraser. So I didn't read it. I think it's only a sharpener and I am using it as a sharpener also, but I don't like this sharpener because it makes a thin lead, and that's not perfect for a shading purpose, as you know. So today I'm going to tell you about which grade these pencils are, which class. So this is A1 grade pencils. You can see their designs. They have great design and lightning, also great reflection. Actually, they have great reflection. So I'm gonna use it. So I sharp these pencils two types. First I sharp it with the sharpener. Wait a minute. As you can see, now you can see, I think. So that's why I didn't like this sharpener, because this make a short tip. This is not great for shading, as you can see. See, not great shading. Wait, why I'm using air. So this as you can see, I now sharp it with this sharpener. So now it's look much more better. Now you can see the shadings. And then you can blend it. I use actually I see many artists just clean this blending stem, but as I say, in place of cleaning it, you can just leave it right like it is itself, because I don't think that the blending stem needed to be clean. I have 5 blending stems, so I doesn't think cleaning one blending stem is a too great work for an artist, as I didn't think you have that much time for cleaning this blending stem by rubbing it on sandpaper or something. As you can see, it also give a great blend and a great shade. You can use this shade in skin like this. You can see this blending stems cover that much area. That's why I write super dark on it. 8B 10B के लिए ये है, चारकोल के लिए भी यही है. ये तीनों एक जैसे ही होते हैं. बाकी सारे पे मैंने लाइट वाइट लिख रखा है कलर के लिए. सो मैं इसका कंपैरिजन कैसे करने वाला हूँ. पहला तो मेरे पास काफ़ी सारे सेट्स हैं. सॉरी फॉर दोज व्यूअर who are watching, who want this video in English, as I can't express my all the feelings in English. So I'm going to continue this video in English, not in Hindi, sorry. रात के 12 बजे यार, मेरा दिमाग कम काम कर रहा है. तो ये है चारकोल पेंसिल्स. यह है 1 रुपये वाली फालतू पेंसिल जो कि मुझे 2.5 रुपये की मिली. मतलब बहुत लूटते हैं यार यहाँ पर लोग. ये है 10B. दिस इज 10B. इसे हटा ही देता हूँ मैं. दिस इज 10B 8B. ये है कैमलिन पेंसिल जो इन कलर्स के साथ आई थी. इसके बाद है यहाँ पर, इसके बाद है अप्सरा की 6B, देन 4B, देन 2B. व्हाट इज इट, अरे क्या है ये भाई. देन HB 6B, अगेन नॉट 6B, 6H 4H 2H. ग्लास मार्किंग, अप्सरा ग्लास मार्किंग, अप्सरा 2B 6B 4B. HB pencil. This is also HB. They both are from different grade actually. This is 10B and no, this is 8B, this is 10B. This is fusion pencil actually. So today I'm going to tell you which grade this pencil is. So first of all, I'm making this pens a long line with this pencil. So here this is a big line. Also I blend it
as you can see, this is raw shade and this is blended shade. So now I'm going to make other small lines with Dom's pencil. I'll also make a review of this pencil. Dom's drawing pencils, these are specially made for shading, but as I see, all shades are almost equal. First I shade with HB, then we go on these pencils. First I shade with this pencil. I'm going on their maximum limit of these pencils. As you can see, they are not matching. Now I'm going on 2B pencil. I'm using 2B pencil. It's also same. That's the reason why these products have cheaper qualities. Man. Now I go with 4B pencil. If you want to buy these pencils, just go on a place which is market. Go buy these products from market, don't buy from your local stationery, as they are the people who increase their rate more than their retailing price. This is, what is it? This is 4B. मैं लिख भी देता हूँ साथ में. This is HB. This is 2B. This is 4B. यहाँ पे 6B आएगी अब. Now it's gonna be 6B. I'm going to use 6B as you can see. So मैं इसके साथ एक और बात बताना चाहूँगा भाई. ये जो मर्चेंट नेवी है ना, साले इसमें मार्क्स को अपनी गांड में घुसेड़ने के लिए लोग तैयार रहते हैं. मार्क्स चाहिए उन्हें बस. मतलब भाई मैं, अगर वो मुझे इंटरव्यू में बुला के भी ना, मैंने विलियमसन की कंपनी का फॉर्म भरा था. सो अगर वो लोग मुझे इंटरव्यू में बुला के मेरी गलतियां बता के मुझे बाहर कर देते ना, तो भी भाई मैं आराम से चल जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी. मगर मेरा फॉर्म तक रिजेक्ट कर दिया. मैंने अपील भी की थी कि भाई थोड़ा समझ के देख लो कि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक है. और दूसरी, मैंने एक्चुअली क्या था कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं कर पाया. मतलब पास तो कर लिया था, 57% मेरे मार्क्स रहे थे, मैं उससे ऊपर अटेन नहीं कर पाया. और तुम जानते हो कि नेवी के लिए 60% से ऊपर चाहिए थे. और मैंने इम्प्रूवमेंट भरा था कॉलेज से वापस आके. मतलब लीवर इंजरी हो गई थी. मैं स्ट्रीट फाइटिंग करता था एक्चुअली, MMA तुमने सुना होगा, मतलब जो उसमें स्ट्रीट फाइट होती है, तो उसमें मेडल था मेरे पास. तो उससे मुझे थोड़ी इंजरी आ गई थी, उसकी वजह से मैं 12th में इतनी मेहनत कर नहीं पाया था. काफ़ी दवाई का काम चलता. बट यार प्रॉब्लम तो क्या समझने से गए बंदे. मेरा इंटरव्यू तक लेने के लिए तैयार नहीं हुए. मुझे रिटर्न टेस्ट में बैठने के लिए, भाई इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है. तो मैं इसे ब्लैंड कर देता हूँ. इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हिंदुस्तानियों के साथ, ये नंबर खाने हैं. साला गे हो क्या, नंबर वाले किताबी कीड़े का लेना है. मतलब इस तरह की हरकतें करते हो तुम लोग. तो भाई तुम देख सकते हो कोई भी इससे मैच नहीं खा रहा. ये तुम्हें एक बिल्कुल अलग ही ग्रेस सा फिनिश देगी. चलो हम इसे छोड़कर दूसरे पर आ जाते हैं. हम ये वाली पेंसिल, देखो मैं सबको एक साथ लगा देता हूँ, तुम सबको देख सकते हो. मैं लगा देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी खिंच जाएगी यार, 10 सेकंड में काम हो जाएगा वैसे तो. आई वांट टू टेल यू ऑलमोस्ट दिस पेंसिल 6H इज टू हार्ड मैन, टू हार्ड. इट इवन कट आउट द पेपर. इट्स कटिंग द पेपर एज यू कैन सी. इट्स टू हार्ड पेंसिल. तो भाई ये मैंने सारी पेंसिल से लाइन मतलब शेडिंग कर दी है. तो भाई अब तुम यहाँ पर ना सीधा सीधा देख सकते हो कि ये तो है सारी डॉम्स की शेडिंग पेंसिल्स, जो कि ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ की, नहीं 80 की तो 80 से कम ही आती है वैसे. आई थिंक 60 या 50 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको. मुझे 50 में मिल गई थी. तो 50 में आपको ये वाली डॉम्स की पेंसिल, शेडिंग पेंसिल्स, जो कि ये पेंसिल्स हैं, ये मिल सकती हैं. इसके अलावा बात करते हैं, ये है कैमलिन की पेंसिल्स, जो कि अलग ही थी. मतलब ये तो कुछ भी है भाई, ये तो इस कलर्स के साथ आई थी. तो ये तो कैमलिन की पेंसिल हो गई. कैमलिन की पेंसिल की शेड तुम देख सकते हो, सेम है, बिल्कुल सेम है. बट इससे मिलती जुलती है. मतलब कि ये वाली पेंसिल 4B से भी मिलती जुलती नहीं है. ओके, तो फिर इसकी ग्रेड क्या होगी. अब ये कुछ भी, तो मैंने इसीलिए लिख दिया. अप्सरा 6B नहीं मिलती. अप्सरा 6B थोड़ी डार्क है. अप्सरा 4B भी डार्क है, 2B भी डार्क है, HB थोड़ी कम डार्क है. बट ये जो पेंसिल है ना, ये वाली,
ये मतलब 6H है, बहुत हार्ड थी भाई, ये बहुत हार्ड पेंसिल है, मतलब साला पेपर काट दिया इसने। ये कम हार्ड है 4H, देन 2H है, और फिर चारकोल है। चारकोल तुम देख सकते हो, इसे डार्केस्ट पेंसिल क्या कहा जाता है। ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, सॉफ्ट। इसके बाद अब अगर तुम देख पा रहे हो ना, तो ये यहाँ से मिल रही है, देखो इस कलर को देखो, तो यहाँ भाई ये बात प्रूफ हो गई है, इस पेंसिल की ग्रेड 6H है। इसका मतलब डॉम्स फ्यूजन सुपर डार्क पेंसिल इज एक्चुअली 6H पेंसिल इन रियलिटी। ऑल्सो इसका ये शार्पनर आपको इसके साथ शार्पनर भी मिलता है, और ये भी मिलता है, इस पर क्रिस्टल विस्टल कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही पीछे इसके डिज़ाइन बना दिया है, क्या कुछ फ़ायदा नहीं इसका डिज़ाइन का, नॉर्मल है। इससे ज़्यादा देखो ये भी 5 रुपये का होगा, इससे बढ़िया तुम 10 रुपये का ये वाला स्केल लो। ये किस काम में मदद करता है, आइस बनाने के। अगर तुम यहाँ देख पा रहे हो ना, तो ये मैंने अभी हाल ही में बनाया था, जिसकी मैंने आइस ड्रॉ की थी ना, वो इसी से की थी। इसकी स्वॉर्ड डिटैचेबल है, बाहर निकल जाती है, एंड ये कट आउट है पूरा। ये ड्राइंग पेपर मैंने यूज़ की थी, ये इवोरी पेपर है, 100 रुपये का 140 लिखा हुआ है यार, साले पता नहीं उल्टा क्यों लिखते हैं फिर। ये 140 लिखा है, बट ये 100 रुपये का है भाई, वहीं से ही नवीन के स्टोर से मिल जाता है मुझे, मटिया महल सहारनपुर। बाकी पेंसिल्स, स्केचिंग, शेडिंग है भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीप प्रोडक्ट्स है उससे मास्टरपीस बना सकूँ, और क्योंकि मैं मास्टर नहीं हूँ तो मास्टरपीस भी नहीं बनाया जा सकता, बट रिव्यू तो किया जा सकता है। तो भाई फिर मिलते हैं, 11 मिनट की हो गई वीडियो, मुझे लगता है थोड़ा मुझे इसे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैप्टन वर्सेटाइल देखते रहो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, और अगर नहीं करना तो मत करो भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।